بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا ومسلما أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ اس دنیا کے اندر دونوں طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ تَتَبَيَّنُ بِأَسْبَابِهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ذات بنائی جس سے پتہ چلتا ہے دن کا۔ اللہ تعالیٰ نے گرمی بنائی جس سے پتہ چلتا ہے سردی کا۔ اللہ تعالیٰ نے نرمی بنائی جس سے پتہ چلتا ہے سختی کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دو ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہر چیز کے اندر جن کا ایک دوسرے سے بالکل ملاپ نہیں ہوتا۔ رات دن سے الگ، گرمی سردی سے الگ، تاریکی روشنی سے الگ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے انسان بنائے ہیں، کافر اور مسلمان۔ کافر مسلمان نہیں ہو سکتا اور مسلمان وہ کافر نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو جائے اس سے جو کفر تک پہنچا دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں اپنے اس ضابطے کے ذریعے سے کہ ہم نے کفر کو بھی بنایا، ہم نے اسلام کو بھی بنایا، لیکن ہم نے اس چیز کو بھی واضح کر دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے تمہیں سکھلا دیے اور دونوں راستوں کی ہدایت دے دی، اور یہ بھی بتایا یہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے اور یہ جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر دو چیزیں، ایک محسوسیات اور ایک معنویات۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اچھے اعمال کریں گے تو آخرت میں آپ کو جنت ملے گی، برے اعمال کریں گے تو آخرت میں جہنم ملے گی۔ یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے لوگوں، اس لیے کہ یہ معنویات کے قبیل سے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آپ پیسے دے کر کے اگر گھی خریدیں گے تو گھی سے آپ کو فائدہ پہنچے گا تو آپ کہتے ہیں کہ بالکل۔ اور اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ زہر کو مت کھائیے گا، پیسے دے کر کے زہر مت خریدیے گا تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ بالکل۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ گھی انسان کی صحت کے لیے مفید ہے اور زہر انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، اس کو تو آپ مانتے ہیں۔ لیکن جب کسی کو سامنے رکھ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی جہنم بھی بنائی، اللہ تعالیٰ نے اچھے اعمال بھی اس دنیا کے اندر پیدا کیے، برے اعمال بھی پیدا کیے، اچھے عمل کرو گے تو جنت ملے گی، برے اعمال کرو گے تو جہنم ملے گی، وہ بات انسان سمجھتا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ اس کی بیوقوفی ہے۔ جب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غذا اگر آپ خریدیں گے، یہ کھانا خریدیں گے، یہ گھی خریدیں گے یا یہ دودھ خریدیں گے، اس سے آپ کے جسم کو فائدہ ہوگا، اور اگر زہر خریدیں گے اس سے آپ کے جسم کو نقصان ہوگا، اس کو سمجھتا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک کہا جا رہا ہے، اس کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے زہر سے کیوں منع کرتا ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے زنا سے بچو، گناہوں سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، چغلی سے بچو، دوسروں کو دھوکہ بازی سے بچو، اور اسی طرح سے دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچو، دوسروں کو تکلیفیں پہنچانے سے بچو، تو وہاں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پتہ نہیں کیوں ان چیزوں سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معنویات کے قبیل سے۔ لیکن عقل مند انسان وہی ہے جو دونوں چیزوں کو سمجھے۔ جس طرح دنیا کے اندر فائدے اور نقصان کو سمجھتا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی فائدے اور نقصان کو اپنے سامنے رکھے اور اس کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے۔ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، لیکن ہم جو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم نے لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ اسلام کو پڑھتے نہیں ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ مسلمان زندگی کس طرح گزارتے ہیں، آپ کے عمل کو لوگ دیکھتے ہیں، لوگ کتابیں پڑھ کر کے اسلام نہیں سمجھتے، لوگ آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ مسلمان کیا عمل کر رہا ہے، اور جب آپ کے عمل کو وہ دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اسلام کی یہی حکم ہے۔ حالانکہ ہم نے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا، ہمارے
छोटी सी छोटी चीज को देख लिया जाए, हर एक अमल हमारा इस्लामी शरीयत के खिलाफ। हमने पूरे मुआशरे को बदनाम करके रख दिया। हमारी शादी ब्याह पर नजर कर ली जाए, हमारे रस्म रिवाज पर नजर कर ली जाए, या इसी तरह से हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत पर नजर कर ली जाए। हम पैसा तो खर्च करते हैं, लेकिन जब ये कहा जाता है कि खर्च करो दीनी तालीम के अंदर या मस्जिदों के अंदर या मदरसों के अंदर या फिर दूसरी चीजों के गरीबों को देने के लिए या सदकात और ज़कात देने के लिए, तो हमारे पास पैसे नहीं, हमारी तरफ इतनी हमारे खुद की खर्चे पूरे नहीं होते। लेकिन जब शादी भी आ जाती है तो फिर वही करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ जितना पैसा मांग लीजिए उनसे, हर चीज के लिए वहां पैसा मिल जाएगा। छोटी से छोटी गलत रस्म के लिए आप पैसा मांग लीजिए, नाच गाने के लिए पैसा मांग लीजिए, तब भी पैसा निकलेगा। आप डीजे बजाने के लिए पैसा मांगिए, तब भी निकलेगा। हाँ, कोई नहीं कहता कि मैं गरीब हूँ इसलिए मैं डीजे नहीं बजाऊंगा, या मैं गरीब हूँ इसलिए मैं ज्यादा बड़ी बारात लेके नहीं जाऊंगा, मैं गरीब हूँ मैं ज्यादा बड़ा वलीमा नहीं करूंगा। आप क्यों करते हैं ज्यादा बड़ा वलीमा जब आपके पास इस्तिदात नहीं है? आपके पास इस्तिदात नहीं है, आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो फिर आप क्यों डीजे बजाने लगते हैं? तो फिर क्यों आप इतने खर्चे अपने सिर डालते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जानते हैं, अल्लाह के रसूल हमारे लिए आइडियल और नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल की भी बेटी थी, अल्लाह के रसूल की बीवियां भी थी। अल्लाह के रसूल ने खुद अपनी भी शादी करके बताया कि शादी किस तरह की जाती है, शादी के अंदर क्या खर्चे किए जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी की भी शादी करके बताया कि बेटियों की शादी किस तरह की जाती है। क्या आपकी बेटी अल्लाह के रसूल की बेटी से बड़ी हो गई? क्या आपकी बेटी अल्लाह के रसूल की बेटी से अफजल हो गई? क्या आपकी बीवी अल्लाह के रसूल की बीवी से अफजल हो गई? क्या आप उसकी नाजायज बातें भी मानने लगे? नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में एक एक अमल मुसलमान को करके बतला गए कि आपके लिए राह है, अगर आप इस पर चल के आएंगे तो आपके लिए आसानी होगी, लेकिन अगर आप इसके खिलाफ चलेंगे तो आपको परेशानी होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिअकून मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम बनाकर के भेजा गया है। मुअल्लिम का मतलब सिखलाने वाला। क्या मतलब? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाना चाहते हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि अपनी उम्मत को तालीम याफ्ता बनाऊं, जाहिल न बनाऊं, अपनी उम्मत को पढ़ा लिखा एजुकेटेड बनाऊं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल के ऊपर 23 साल के अंदर कुरान करीम नाज़िल हुआ। उन 23 साल में सबसे पहले जो अल्लाह के रसूल के ऊपर हुक्म नाज़िल हुआ था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इक़रा के माना आप जानते हैं? इक़रा का मतलब है पढ़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले जिस चीज की तालीम दी जा रही है, अल्लाह के रसूल को नहीं दी जा रही, अल्लाह के रसूल के जरिए अल्लाह के रसूल की उम्मत को दी जा रही है। अल्लाह ताला ये कहना चाहते हैं कि आप पढ़िए, अल्लाह का नाम लेकर के शुरू कीजिए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया जबे हुए खून से। खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अपने उस रब की जात की कसम खा करके पढ़िए जो सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है। वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने तुम्हें तालीम दी कलम के जरिए से। सारी चीजें तो तालीम की हमें सबसे पहले बतलाई गई। जिस उम्मत को मुआशरे को सबसे पहले तालीम की का हुक्म दिया गया, आज वो मुआशरा सबसे पीछे तालीम के अंदर। चाहे दुनियावी तालीम दे लीजिए, दुनियावी तालीम में भी आप आगे नहीं है। अगर आपकी सारी जिद्दोजहद, आपकी सुबह से शाम तक सारी तबों को, वो सब दुनियावी तालीम के पीछे, लेकिन फिर भी आपके हाथ में कुछ है नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमने अपने पैगंबर की तालीमात को पीछे छोड़ा। दोनों तालीमात को आपको सामने रखना पड़ेगा, फिर आप देखिए कामयाबी आपकी कैसे कदम चूमती है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको शादी ब्याह पर खर्चे करने से ज्यादा अपनी औलाद की तालीम और तरबियत पर खर्च करने की तौफीक नसीब फरमाए। हम क्या करते हैं? अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं और उस औलाद को मोहब्बत की सिला ये देना चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा माल इकट्ठा करके अपनी औलाद को मालदार बनाने में छोड़ जाए। लेकिन आप जाहिल औलाद को मालदार बना के क्या करेंगे? आप उस पैसों को खर्च कीजिए अपनी औलाद की तालीम के लिए, अपनी औलाद की तरबियत के लिए, और उनको पढ़ा लिखा बना करके जाइए। वो आपके लिए फख्र की बात होगा। आप अपनी औलाद को मालदार बना के छोड़ गए और जाहिल बना के छोड़ गए, आप कब्र के अंदर लेटे होगे। आपकी औलाद इतना भी नहीं कर सकती कि एक सिपारा पढ़ के, एक सूरत पढ़ के आपको सवाब पहुंचा दे। वजह आपने
औलाद की कोई गलती नहीं है, आपकी गलती आपने उसको तालीम पर डाला नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों को होश के नाखून लेने की तौफीक नसीब फरमाए और तालीम और तरबियत अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए और उसको ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक हदीस मुख्तसर सी है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम 3 किलो अनाज खर्च करने से बेहतर ये अपनी औलाद को सिर्फ एक अदब की बात सिखा दो। आप खर्च करके हदीस के अंदर है कि गरीब की मदद करने से ज्यादा अहमियत ये बात रखती है कि तुम अपनी औलाद के ऊपर 1 रुपया खर्च कर दो उसकी तालीम के लिए। यानी आपको उतना सवाब गरीब की मदद करने में नहीं मिलेगा जितना आप अपनी औलाद की तरबियत करने में पैसा खर्च करेंगे। क्यों? इसलिए कि वहां दोनों चीजें पाई जा रही। नंबर 1, अब आदमी अपनी बीवी पर अपने बच्चों पर जो खर्च करता है उसको भी सदके का सवाब मिलता है। हदीस के अंदर है कि आप अगर कोई शौहर अपनी बीवी के मुंह में लुकमा भी डालता है उसमें भी इंसान को अगर उसकी नीयत अच्छी होती है सदके का सवाब अल्लाह ताला उसको इनायत फरमाते। ये हमारा दीन है, ये हमारी शरीयत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मुकम्मल इस्लाम के अंदर दाखिल फरमाए। आप खुदा